ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، سرکار کا میلاد کریں گے، ہر عالم سرکار کا میلاد۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، والعاقبة للمتقین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء اکرام کے جانثاروں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے کائنات، فخر موجودات، رحمت دو جہاں، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و پاک پڑھیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ والحکم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کہیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیر و باغ میں ہے کچھ ہی دم کے چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے کچھ ہی دم کے چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والی ہے، تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ لیکن حضرات گرامی، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی ارکان اسلام 5 ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج، اور ان عبادتوں کا دار و مدار ایمان ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ان عبادتوں کا دار و مدار ایمان ہے، یعنی بغیر ایمان کے کسی کی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی ریاضت بارگاہ الہی میں قبول و
मकबूल नहीं हो सकती। इसीलिए तो मैं कहता हूँ पहले ये जान लिया जाए कि ईमान किसे कहते हैं। ईमान नाम है अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल को मानने का। इसके लिए जरूरी यानी इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, यानी जरूरी है कि जबान से अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत और उसके रसूल की रिसालत का इकरार किया जाए और जबान से भी इसकी तस्दीक की जाए। ईमान के बाद इबादतों में सबसे अफजल इबादत जो है वो है नमाज, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार आलम कुरान मुकद्दस में मुख्तलिफ मकामात पर नमाज का जिक्र फरमा रहा है। कहीं फरमाता है व अकीमुस सलाह, यानी नमाज कायम रखो। कहीं इरशाद फरमाता है हाफिजू अलस सलावाती वस सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, नमाजों की मुहाफिजत करो, खुसूसन वस्त नमाज यानी नमाज असर की, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अदब से खड़े रहो। कहीं इरशाद फरमाता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, यानी नमाज बेशक नमाज तमाम बेहयाई और बुरी बातों से रोकने वाली है, तमाम बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। कहीं इरशाद फरमाता है वअमुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और खुद भी उसका एहतिमाम करते रहिए। कहीं इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान, कहीं इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद चाहो। कहीं इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, फिर इरशाद फरमाता है वअमुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, यानी अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और खुद भी उसकी ताज़ीम और खुद भी उसका एहतिमाम करते रहिए। यानी हमें जरूरी है कि लोगों को भी नमाज का हुक्म दे, घर वालों को भी नमाज का हुक्म दे और खुद भी उसका एहतिमाम करें। यानी हमें जरूरी है कि हम खुद भी नमाज पढ़ें और दूसरों को भी नमाज का हुक्म दें। हदीस पाक में नमाज के बेशुमार फजाइल बयान किए गए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो जबकि वो 7 साल के हो जाएं, और जब वो 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार कर नमाज पढ़ाओ। लोगों हमारा तरीका ये क्या, हमारा तरीका यही है? नहीं नहीं, हमारा तरीका तो ये है जब किसी को नमाज के लिए उठाने जाओ तो घर वाले कहते हैं हमारा बेटा रात का आया हुआ है और दिन भर काम किया है, थका हुआ है, उसे सो लेने दो, जब सोकर उठेगा तो उसे बता देंगे कि कोई तुम्हें नमाज के लिए उठाने के लिए आया था। कसम खुदा की, क्या हमारा तरीका यही है? नहीं नहीं, हमारा तरीका तो ये होना चाहिए कि किसी को आने की जरूरत ना पड़े और हम खुद ही अपने बच्चों से कहें ऐ बेटे अदान हो चुकी है, अब तुझे जरूरत है कि अपने बिस्तर को छोड़ दे, अपने बिस्तर से दूर हो जा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। अपने बच्चों से कहना चाहिए ऐ बेटे अब आराम गाह से निकल और नमाज की तरफ जा, नमाज में कामयाबी है, नमाज में कामरानी है, ऐसी कोई मंजिल नहीं जो नमाज से ना मिल सके। लेकिन कसम खुदा की, जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो जबकि वो 7 साल के हो जाएं और उन्हें मारो जबकि वो 10 साल के हो जाएं, लेकिन और उन्हें बिस्तरों में अलग अलग लिटाओ। हालांकि नमाज पढ़ने के लिए इन 3 चीजों का होना लाजिमो जरूरी है। नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 आकिल होना यानी अक्ल वाला होना, नंबर 3 बालिग होना। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर इन तीनों चीजों में से इंसान के अंदर कोई चीज फौत यानी किसी चीज की कमी नजर आती है तो उसके ऊपर नमाज पढ़ना फर्ज नहीं, उसके ऊपर नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है। मसलन अगर कोई शख्स आकिल तो है, बालिग तो है मगर मुसलमान नहीं, तो ऐसे शख्स पर भी नमाज पढ़ना फर्ज नहीं। इसी तरह अगर कोई शख्स बालिग है, मुसलमान है मगर आकिल नहीं यानी अक्ल वाला नहीं है, तो उसके ऊपर भी नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है। इसी तरह अगर कोई शख्स मुसलमान तो है, आकिल तो है, बालिग तो है लेकिन बालिग नहीं है, तो उसके ऊपर भी नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जबकि वो 7 साल के हो जाएं और उन्हें मार कर नमाज पढ़ाओ जबकि वो 10 साल के हो जाएं। मकसद क्या है? मकसद ये है कि अगर तुमने उन्हें बचपन ही में नमाज का आदी बना दिया तो वो नमाज का शौक, तो उनके दिल में नमाज का शौक व ज़ौक़ पैदा हो जाएगा। अगर तुमने उन्हें बचपन ही में कहा ऐ बेटे नमाज पढ़ा कर, तो उन्हें ऐ बेटे
नमाज पढ़ाकर, तो उनके दिल ही में बचपन ही से नमाज का शौक व ज़ौक़ पैदा हो जाएगा। बचपन ये है वो उनके दिल में नमाज का शौक व ज़ौक़ पैदा हो जाएगा। मकसद ये है कि अगर तुम उन्हें बचपन में नमाज के लिए कहोगे, जब वो नमाज पढ़ेंगे तो उन्हें नमाज का तौर तरीका मालूम हो जाएगा। इसलिए फरमाया ताकि हम लोग ने देखा होगा कि कितने लोग मुझसे बड़े और मुझसे छोटे भी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी शादियां तक हो चुकी हैं, उनके मेरे बराबर बेटे भी हैं, हमारे बराबर बच्चे भी हैं, लेकिन कसम खुदा की जब कोई हमारे पास आता है कहता है हाफिज साहब हमें नमाज का तरीका नहीं मालूम, हमें गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, हमें वजू का तरीका नहीं मालूम, तो इस दिल को तकलीफ होती है, इसलिए कि तुम छोटे से लेकर इतने बड़े हो गए, तुम शादी भी हो गई तुम्हारी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बराबर हैं, लेकिन तुम्हें नमाज का तरीका नहीं मालूम। आखिर वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि तुमने कभी किसी से पूछा ही नहीं। अगर तुमने पूछा होता, अगर तुम किसी के पास गए होते तो तुम्हें नमाज का तरीका मालूम होता। हमें चाहिए कि हम 5 वक्त नमाज की पाबंदी करते रहें और अपने बच्चों को भी नमाज का हुक्म दे। नबी पाक और अब बारी आती है कि नमाज पढ़नी किस तरीके से है, नमाज पढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत है, तो हमें जरूरत है नमाज पढ़ने के लिए वजू की, हमें जरूरत है कि हम पाक रहें, हमें जरूरत है कि हम गुस्ल करते रहें। और लोगों गुस्ल करने का तरीका हर किसी को मालूम नहीं होता, ये हमने देखा है। तो मैं जरूरी समझता हूँ कि कुछ लोगों को गुस्ल करने का तरीका भी बता दिया जाए, वजू करने का तरीका भी बता दिया जाए, गुस्ल करने का तरीका बता दिया जाए, ताकि उनकी नमाज दुरुस्त हो जाए, ताकि उनकी नमाज दुरुस्त हो जाए। उनकी नमाज जब वो नमाज पढ़ने के लिए निकले तो उन्हें मालूम हो कि हम पाक हैं, उन्हें मालूम हो कि हम साफ हैं। इसलिए जब वो मस्जिद आए तो उन्हें मालूम हो कि जब हम पाक हैं, गुस्ल कर चुके हैं, वजू कर चुके हैं, तो हमारी नमाज भी पाक होगी, हमारी नमाज भी साफ होगी। इसलिए मैं जरूरी समझता हूँ कि पहले लोगों को गुस्ल का तरीका बता दिया जाए। लोगों गुस्ल करने का तरीका ये है कि पहले गुस्ल की नियत करो। नियत किस तरीके से करनी है? नियत करनी है चाहे वो नापाक हो या पाक हो, लेकिन नियत इस तरीके से करनी है, नियत की मैंने गुस्ल करने की और मुकम्मल तरीके से पाकी हासिल करने की, ताकि अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर सकूं और उनकी मर्जी के मुवाफिक काम कर सकूं। गुस्ल करने का तरीका क्या है? गुस्ल करने का तरीका यह है कि अपनी नाफ से लेकर पूरा नीचे का हिस्सा 3 मरतबा इस तरीके से धो ले कि बाल बराबर जगह भी बाकी भीगने से न रह जाए, कोई जगह ऐसी न रह जाए जिस पर पानी ना बहे। हमें जरूरी है कि इतना हिस्सा, नाफ के नीचे का हिस्सा 3 मरतबा सही तरीके से धो ले ताकि गंदगी दूर हो जाए। उसके बाद अपने हाथ दोनों यानी गट्टे तक धोने हैं। गट्टे तक धोने के बाद हमको नमाज की तरफ, उसके बाद हमें नमाज की तरफ वजू करना है जिस तरीके से नमाज में वजू करते हैं। अब नमाज में वजू किस तरीके से करते हैं? नमाज में हम वजू इस तरीके से करते हैं कि हम पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर 3 बार दाहिने हाथ यानी सीधे हाथ से कुल्ली करें, फिर 3 बार बाएं हाथ यानी उल्टे हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाएं, फिर 3 मरतबा चेहरे के धोएं यानी एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, सर के ऊपर बाल उगने की जगह से और थोड़ी के नीचे तक। उसके बाद चेहरा धो लिया। अब हमें कोहनियों समेत दोनों हाथ धोने हैं। तो जरूरी है कि पहले कोहनियों की तरफ से, पहले उंगलियों की तरफ से 3 बार कोहनियों के ऊपर पानी बहाएं। अब पहले सीधा हाथ धोएं, फिर दाहिना हाथ यानी टेढ़ा हाथ धोएं, उसके बाद फिर सीधे हाथ पर कोहनियों की तरफ से उंगलियों की तरफ पानी डालें। अब जब दोनों हाथ धुल चुके तो फिर सर का मसाह करें। सर का मसाह किस तरीके से करना है? सर का मसाह हमें इस तरीके से नहीं करना है कि मैंने कुछ लोगों को देखा है, लोग हाथ में पानी लेते हैं फिर चूमते हैं। ये चूमना कहीं नहीं लिखा, ये चूमने का तरीका गलत है। हमें करना ये है कि पहले दोनों हाथ अपने मिलाएं और हाथ में पहले पानी लें, फिर दोनों हाथों के 3 उंगलियां मिलाएं, उसको फिर इस तरीके से ले जाएं, सर के ऊपर ले जाएं, फिर वापस लाएं और ये दोनों अंगूठे यहाँ पे कान के ऊपर लगते हुए आए और माथे तक वापस आ जाएं। उसके बाद फिर गर्दन का यानी भीगे हुए हाथ से गर्दन का मसाह कर लें और उसके बाद 3 बार टखने समेत अपने दोनों पांव धो लें।
پہلے سیدھا پاؤں دھوئیں، پھر اس کے بعد بایاں پاؤں دھوئیں۔ ہمارا وضو مکمل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اچھی طریقے سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے ایک نہیں بلکہ 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ وضو کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اسے بشارت دے دی جاتی ہے، خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ اے میرے بندے آ میری جنت کا نظارہ کر لے، آ میری قدرت کا نظارہ کر، یہ برگ و ثمر تیرے لیے ہیں، یہ حور و غلمان تیرے لیے ہیں، یہ نور و نکہت تیرے لیے ہیں، یہ جنتی نعمتیں تیرے لیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے گھر کے نیچے نہر جاری ہو یعنی اس کے گھر کے دروازے کے پاس سے ایک نہر نکلتی ہو اور اگر وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو بتاؤ کیا اس کے بدن پر میل و کچیل باقی رہے گا؟ کیا اس کے بدن پر گندگی باقی رہے گی؟ کیا وہ غرض و غبار میں رہے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی حالت میں ایسی کیفیت میں اس بندے کے بدن پر کوئی بھی میل و کچیل باقی نہ رہے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا اے صحابہ سنو اگر کوئی بندہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے، اگر کوئی بندہ نماز 5 ٹائم کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، کوئی بندہ اگر 5 اگر کوئی بندہ 5 وقت کی نماز با پابندی پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ اس طریقے سے معاف کر دیے جاتے ہیں جیسے کہ وہ ابھی پیدا ہوا ہو، اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو، اس سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے کہنے میں اور بولنے میں کوئی غلطی یا خامی ہوئی ہو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے وسیلے معاف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔